Hello friends, welcome to my YouTube channel Ali's Classes. My name is Shakir Ali. Today we will study about the chemical reaction of phenol. Okay, in part 1 we studied about the some preparation and properties of phenol, and in part 2 we studied about the some acidity of phenol. Now we will study about the chemical reaction of phenol, some chemical reaction with sodium hydroxide and many more. The first reaction with sodium hydroxide. When phenol reacts with the sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide. But when phenol reacts with the sodium bicarbonate or weak bases, it doesn't give any type of reactions. Okay, this means this type of reaction is used for the distinguish between the aromatic carboxylic acid and phenol. What it used for the distinguish between aromatic carboxylic acid and phenol. Okay. Now next reaction with acid chloride and acid anhydride means formation of SO. When phenol reacts with the sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide. Okay, and when react with the acid chloride, it gives phenyl acetate. Okay, what gives phenyl acetate. When phenol react with the benzoyl chloride, it also in presence of sodium hydroxide, it gives phenyl benzoate. Okay, next reaction is next formation of ethers. There are two type of name reaction, like first one is Williamson ether synthesis and Ullmann reaction. What? Ullmann reaction. In first Williamson ether synthesis, first of all phenol first of all react with the sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide. Okay, sodium ion. When sodium phenoxide react with the alkyl chloride, it gives phenitol or phenyl ether. Okay, it gives mainly ether compound. Okay, that is called Williamson ether synthesis reaction. But in Ullmann, it gives diaryl ether. When sodium phenoxide react with para-nitrochlorobenzene in presence of cuprous powder. What? In presence of cuprous powder, it gives diaryl ether. Okay, so there are two type of reaction. First is Williamson ether synthesis and second one is Ullmann reaction. दोनों ही रिएक्शन में ईथर की सिंथेसिस होगी. अगर कोई पूछता है उलमैन में और विलियमसन सिंथेसिस में हमें ईथर की फॉर्मेशन मिलती है, तो उलमैन में हमें दो डाइएराइल ईथर कंपाउंड मिलता है और हमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस में इथाइल फिनाइल ईथर. ओके, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स. नेक्स्ट रिएक्शन विद जिंक डस्ट. व्हेन जब हम फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करते हैं, जिंक के साथ, it gives benzene. Okay, next is फेरिक क्लोराइड. इस हम जब फेरिक क्लोराइड से फिनॉल की रिएक्शन करते हैं, फिनॉल की ट्रीटमेंट जब हम फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में करते हैं, तो इट गिव्स वॉयलेट कलर. ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स हमें देता है, जो हेक्सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है वॉयलेट कलर का. इसको हम फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं. किसके लिए यूज़ करते हैं? फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं एज अ क्वालिटी टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप. तो ये हमारा फेरिक क्लोराइड का एक एप्लीकेशन भी है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स. फर्स्ट वन इज हेलोजिनेशन रिएक्शन. व्हेन फिनॉल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन with chlorine, it gives two type of product. First one is orthochloro and second one is parachloro. Okay, first one is ortho and parachloro. But when in presence of polar solvent, जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये हमें एक्वस सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स में हम जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमें ये ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देगा, like 2,4,6 tribromophenols. But in case of non-polar solvents, ये हमें कोई एक मेजर प्रोडक्ट देगा, पैरा. ओके, पैरा ब्रोमिनेशन.
अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं फिनॉल को तो ये हमें एक मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देता है, ठीक। बट इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट इट गिव्स ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ये याद करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट वन इज नाइट्रेशन। अगर हम डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ प्रेजेंस में हम जब रिएक्ट करेंगे तो ये हमें ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट देगा डाइल्यूट में। बट कंसनट्रेटेड प्रेजेंस में ये हमें ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? ट्राई सब्स्टिट्यूट नाइट्रेशन प्रोडक्ट, दैट इज पिक्रिक एसिड। ओके, सल्फोनेशन के केस में क्या यहाँ हमारा एक टेम्परेचर फैक्टर है। अगर हम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रखते हैं फिनॉल के केस में जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो ये हमें ऑर्थो प्रोडक्ट देगा। अगर हमें पैरा चाहिए तो हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सल्फोनेशन। ओके, हमें यहाँ अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करते हैं तो सल्फोनेशन पैरा पोजीशन पर होगा। अगर 20 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो इट गिव्स ऑर्थो प्रोडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नाइट्रोसेशन। ओके, जब हम फिनॉल को फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट with HCl at 5 degree Celsius, it gives para nitrosophenol. Okay, then when para nitrosophenol react with a dilute HNO3 nitric acid, it gives para nitrophenol. अब यहाँ ये बात आती है नाइट्रोसेशन और नाइट्रेशन में। डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक। यहाँ हमें पैरा पोजीशन पे, अगर सिर्फ पैरा हमें चाहिए तो पहले हम उसको नाइट्रोसोफिनॉल बनाएंगे, मतलब नाइट्रोसेशन रिएक्शन से, देन रिएक्ट विद द डाइल्यूट HNO3 इट गिव्स पैरा पोजीशन, ठीक है, पैरा प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज रायमन-टेमन रिएक्शन। व्हेन एल्काइल हैलाइड फिनॉल रिएक्ट विद द एल्काइल हैलाइड, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्काली, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, देन इन प्रेजेंस ऑफ aqueous acidic it gives salicyl डिहाइड। रायमन-टेमन रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? सैलिसिल डिहाइड। नाउ नेक्स्ट वन इज कोल्ब्स रिएक्शन। नेक्स्ट से पहले हम गटरमैन पे जाते हैं। गटरमैन रिएक्शन और रायमन-टेमन रिएक्शन का प्रोडक्ट दोनों सेम ही है, सैलिसिल डिहाइड ही हमें मिलता है, बट वहाँ हमारा जो प्रोसीजर है थोड़ा सा अलग है, रिएजेंट थोड़ा अलग है। यहाँ हम HCN HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और H2O के प्रेजेंस में इट गिव्स सैलिसिल डिहाइड। बट इन रायमन-टेमन हम अल्काइल हैलाइड और एक्वस NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे थे, देन इट गिव्स सैलिसिल डिहाइड। रिएजेंट में डिफरेंस है, बाकी प्रोडक्ट हमारा गटरमैन और रायमन-टेमन में सेम है। नाउ नेक्स्ट वन इज कोल्ब्स रिएक्शन। व्हेन फिनॉक्साइड आयन सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड at 125 degree Celsius, 6 atmospheric pressure, it gives sodium salicylate. What? It gives sodium salicylate. When sodium salicylate react with aqueous acid, it gives salicylic acid. Okay, that is Kolb's reaction. तो Kolb's reaction में हमारा प्रोडक्ट क्या है? Salicylic acid. Now next one is Fry's rearrangement. Okay, when phenol react with acetic anhydride, okay, it gives some intermediate. When intermediate react with the LCl3 ammonium chloride, it gives orthohydroxyacetophenone. Okay, यहाँ क्या होता है, जब हमारा जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये जो हमारी रीअरेंजमेंट हमारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होती है, तो इसी का नाम इसलिए रीअरेंजमेंट है। तो एसिटाइलेशन हमारा कहाँ होता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। जब हम फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में करते हैं, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद द फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्काली, इट गिव्स ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो इट गिव्स टू ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल रिएक्ट विद द फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्काली, इट गिव्स ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड
para hydroxy benzyl alcohol. Now next reaction is oxidation. Okay, in oxidation, when phenol react with a chromium oxide or oxygen, it gives para-benzoquinone. ठीक. In catalytic hydrogenation, phenol react with the hydrogen in presence of nickel at 160 degree Celsius, it gives cyclohexanol. Now next one is, तो अब हमारी बात आती है क्वालिटेटिव टेस्ट. हमें यह भी आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है क्या उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट था या नहीं. ओके, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या है, FeCl3. तो FeCl3 की रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है, क्वालिटी टेस्ट. मैं आपको याद दिला दूँ एक बार. इट इज़ फेरिक-क्लोराइड. ओके, तो यहाँ क्या, जब हम फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे थे फेरिक क्लोराइड के साथ, ओके, तो ये हमें वॉलेट कर दे रहा था क्योंकि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, हेक्सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा था. तो हम इसको एज अ क्वालिटी टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप. तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या है क्वालिटी टेस्ट में, FeCl3 के साथ. तो इसका पता चल गया आपको. नेक्स्ट वन इज़ एनिलीन डाई टेस्ट. इसमें सबसे पहले हम जो एनिलीन है, एनिलीन को डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हम एनिलीन को हम डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करते हैं. फिर इसको हम कूल करेंगे और उसके अंदर हम जो हमारा सॉल्यूशन है सोडियम नाइट्राइड का, उसको ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं. ठीक. नाउ फिर हम इसको सॉल्यूशन को कोल्ड करेंगे, कूल. देन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा फिनॉल है उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व करके तैयार रखेंगे, प्रिपेयर रखेंगे. अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस साथ इसलिए रिएक्ट करते हैं फिनॉल को ताकि वो हमें सोडियम आयन दे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन दे. ठीक. नाउ इससे के बाद हमारा जो हम जो ऐड करेंगे और जो हमारा फिनोलिक सोडियम फिनॉक्साइड है उसको हम इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं. ठीक. देन इट गिव्स रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट. Okay, now next one is थेरिन टेस्ट. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स फिनॉल और थैलिक एनाइड को हम मिक्स करते हैं. उसके अंदर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज. ठीक. देन हम उसको हीट करके उसके अंदर कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे. जब तक ऐड करते रहेंगे जब तक वो हमारा सॉल्यूशन जो एल्कलाइन ना बन जाए. जब एल्कलाइन हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा तो हमारा एक पिंक या पर्पल कलर का अपीयरेंस होगा. जो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा एल्कलाइन, देन इट गिव्स पिंक और पर्पल कलर. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल और एक्वस ब्रोमिनेशन करते हैं जिसकी वजह से हमें 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनॉल मिलता है, मीन्स ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो येलोइश वाइट कलर का होता है. प्रेसिपिटेट किस टाइप का होता है, वो येलोइश वाइट. ओके, ये हमने लास्ट टाइम भी अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा. देन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट. इसके अंदर हम कुछ फ्यू ड्रॉप्स अमोनियम नाइट्रेट ऐड करते हैं फिनॉल के अंदर. देन इट गिव्स ग्रीन और ब्राउन पीपीटी. व्हाट इट गिव्स ग्रीन और ब्राउन प्रेसिपिटेट. लिबरमैन टेस्ट, हम कुछ अमाउंट फिनॉल का लेते हैं. देन उसके अंदर हम कुछ सोडियम नाइट्राइड ऐड करेंगे पहले. देन कूल करेंगे उस सॉल्यूशन को. उसके अंदर फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज. देन इट गिव्स डीप ग्रीन कलर. ओके, इट गिव्स डीप ग्रीन कलर. जब हम इसके अंदर H2SO4 ओके जब हम इसके अंदर H2SO4 ऐड करेंगे तो ये हमें एक रेड कलर देगा. H2SO4 जब हम ऐड करेंगे ये हमें एक रेड कलर देता है. जब हम इसके अंदर फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं देन इट गिव्स ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर. ओके, सबसे पहले हमें ग्रीन कलर कन्वर्ट होता है रेड कलर में, रेड कलर से फिर हमें लास्ट में ब्लू कलर मिलता है. तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमारे फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है. तो ये हमारी कुछ क्वालिटी टेस्ट थी, लाइक लिबरमैन, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, थैलिन टेस्ट, एनिलीन एंड
FeCl3 टेस्ट। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वालिटी टेस्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड कुछ रिएक्शंस के बारे में थी। पार्ट 2 में हमने पहले एसिडिटी के बारे में पढ़ लिया, पार्ट 1 में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये हमारे फिनॉल का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द aromatic amines. Thanks for watching. Like, share and subscribe for more information. Thank you.